Fight IEC campaign 2024 for prevention of HIV/AIDS. Please welcome our first contestant, Seerat, for debate. Honorable Chief Guest, Block Medical Officer Bhadarwah, Principal Sir, faculty members and students, a very good morning to all. Today I am going to throw some lights on HIV/AIDS. HIV/AIDS remain a critical global health issue with millions of people still lacking access to proper treatment. Stigma and discrimination continue to be a major obstacle preventing many from seeking the help they need. Public awareness campaigns are essential in reducing the stigma and encouraging people to get tested and treated. Antiretroviral therapy has been a significant breakthrough in managing the disease, allowing people to live longer and healthier. However, it is not a cure and ongoing research is crucial to finding one. Global cooperation is also necessary to ensure affordable healthcare and widespread testing, especially in low-income regions where the disease is most prevalent. On the other hand, significant progress has been made in the fight against HIV. Many individuals with HIV now lead near normal lives due to advancement in treatment. Prevention is a key, and educating people on safe sexual practices and the dangers of needle sharing has been proven effective in reducing transmission rate. Global initiatives like the Global Funds and PEPFAR have been instrumental in lowering new infections and AIDS-related deaths. Awareness campaigns have been successfully in reducing stigma, and more people are now receiving treatment. The focus should be on sustaining this progress rather than instilling fear, as the narrative around HIV has shifted from despair to hope. As long as it's about HIV, hate the disease but not the disease, separate awareness, not ignorance. Thank you. नहीं कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। आदरणीय ब्लॉक मेडिकल ऑफिस भदरवाह, आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सभी को शुभ प्रभात। आप सभी को इस समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आज मैं साक्षी इस संस्थान की ओर से HIV/AIDS पर चर्चा करने जा रही हूँ। HIV/AIDS एक चुनौती, एक जिम्मेदारी। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे समाज और हमारे परिवार को भी प्रभावित कर रही है। ये बीमारी है HIV/AIDS। अब हम लोगों को तभी जागरूक कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि HIV/AIDS आखिर है क्या, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो आइए जानते हैं HIV/AIDS है क्या। HIV/AIDS क्या है? HIV/AIDS एक वायरस है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। ये वायरस हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना कमजोर कर देता है कि हमारा शरीर बाहरी संक्रमणों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। HIV/AIDS संक्रमण का अंतिम चरण है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर हो जाती है। HIV/AIDS के कारण क्या हैं? HIV/AIDS के मुख्य कारण है यौन संबंध, रक्त संक्रमण, मां से बच्चे तक, नशीली दवाओं के उपयोग से। HIV/AIDS के लक्षण क्या हैं? HIV/AIDS के लक्षण हैं बुखार, थकान, वजन कम होना, सांस लेने में परेशानी होना, त्वचा पर दाग होना। HIV/AIDS की रोकथाम कैसे करें? HIV/AIDS की रोकथाम सुरक्षित यौन संबंध, नशीली दवाओं से बचना, रक्त संक्रमण से बचना और HIV टेस्ट कराना, ये सब इसके मध्य रोकथाम हो सकते हैं। HIV/AIDS के खिलाफ लड़ाई से हमें कई कदम उठाने होंगे, जैसे कि जागरूकता फैलाना। हमें लोगों को HIV/AIDS के बारे में जागरूकता करना होगा, शिक्षा देना। हमें लोगों को HIV/AIDS के बारे में शिक्षित करना होगा, सामाजिक समर्थन देना। हमें HIV/AIDS से पीड़ित लोगों को सामाजिक समर्थन देना होगा। HIV/AIDS का उपचार कैसे करें? HIV/AIDS का उपचार एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, स्वस्थ जीवन शैली और सामाजिक समर्थन के माध्यम से किया जा सकता है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख,
हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। आशा है आप सभी इस विषय पर चर्चा को ध्यान से सुन रहे होंगे और इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में हम सबकी मदद करेंगे। धन्यवाद। Honorable Chief Guest, Block Medical Officer Bhadarwa, Principal Sir, faculty members and students, a very sweet good morning to all of you. I am going to throw some light on HIV/AIDS. Thank you for gathering here today to talk about the topic that touches not only the lives of millions but the very fabric of our humanity, HIV/AIDS. We are here not just to share knowledge but to spark change, to inspire compassion and to stand together in solidarity with all those affected by this global health crisis. HIV/AIDS क्या है? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम पर हमला करता है। अगर इसका बरवकत इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी एड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि एक खतरनाक हालत है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि HIV/AIDS काबिल इलाज है। आजकल एड्स के मरीजों के लिए ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो इनकी जिंदगी को मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने में मदद देती है। ताहम इस बीमारी से बचाव और बरवकत इलाज के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। आगाही और तालीम की ज़रूरत। HIV/AIDS के बारे में आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भी बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में सही मालूमात नहीं रखते और गलत फहमियों का शिकार हैं। इस बीमारी से मुतासिर अफराद को अक्सर समाजी तासुब और नफरत का सामना करना पड़ता है, जो कि इनके लिए एक इजाफी बोझ बन जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि HIV सिर्फ मखसूस तरीक़ों से फैलता है। इन्फेक्टेड ब्लड या सिरिंजेस का इस्तेमाल करने से या माँ से बच्चे को पैदाइश या दूध पिलाने के दौरान ये बीमारी किसी को हाथ मिलाने, खाने पीने या साथ बैठने से नहीं फैलती। लिहाजा हमें लोगों में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि वो खौफ की बजाय हमदर्दी का मुजाहिरा करें। बचाव के तरीके। HIV से बचाव मुमकिन है और इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ऐसी सुइयां और सिरिंज इस्तेमाल ना करें जो पहले किसी और ने इस्तेमाल की हों। बाकायदा HIV टेस्ट करवाना भी एक अहम कदम है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह या माहौल में रहते हैं जहां इसका खतरा ज़्यादा हो। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एक ऐसी दवा है जो HIV से बचाने में बहुत मौसर साबित होती है और इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा सकता है जो इस वायरस के खतरे से दोचार हों। इलाज की अहमियत। अगर कोई शख्स HIV से मुतासिर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई। आजकल एंटी रेट्रोवायरल इलाज की बदौलत लोग एक आम और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। इस इलाज के जरिए वायरस को इस हद तक कम किया जा सकता है कि वे दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना हो। लेकिन दुनिया के बहुत से हिस्सों में अभी भी लोगों को ये इलाज मैसर नहीं है। खास तौर पर गरीब और पसमानदा इलाकों में हमें यह यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने चाहिए कि हर शख्स को मुनासिब इलाज और सेहत की सहूलियात मैसर हों, चाहे वो कहीं भी हों। हम सब की जिम्मेदारी। HIV/AIDS से बचाव और इसका इलाज सिर्फ हुकूमतों और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है ताकि हम इस बीमारी से मुतासिर लोगों को माशरती सपोर्ट दे सकें और इनके साथ हमदर्दी से पेश आएं। हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम माशरे में पाए जाने वाले तासुब और इम्तियाज़ को ख़त्म करें। हमें यह समझना होगा कि HIV/AIDS एक बीमारी है, ना कि कोई इखलाकी कमज़ोरी या जुर्म। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ इलाज मौजूद है, बचाव के तरीके मौजूद हैं, लेकिन हम तभी इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकेंगे जब हम सब मिलकर
इसके खिलाफ जंग लड़ेगी। की जरूरत पड़ गई, मैंने अनाउंसमेंट कराई, बाकी चीजें करवाई, चलो उधर अप्रोच लगाया, डोनर ले लिया कहीं से, मेरा क्यों नहीं? आपको क्या पता मैं भी पास हो सकता हूँ? बताओ, देने वाले को करना है, लेने वाले को करना है? नोट करो ये क्वेश्चन फिर एक बार। ये तीसरा क्वेश्चन आया आपके लिए। ये 3-4 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको सारा HIV और एड्स का पता चल जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन? फैलता कैसे? ठीक है, जैसे चलो बेस्ट ऑफ लक। जैसे आप सबको पता ही है 1 दिसंबर एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके प्रिंसिपल साहब को, पूरी फैकल्टी को, सारे स्टूडेंट्स को। प्री डेट से पहले आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो। आप सारे यंग हो, अपने घरों के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू ये मैसेज आम करो। एड्स बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी मुसीबत है ये, और इस पर हिंदुस्तान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा आता है। उस खर्चे को कम करने के लिए हम भी छोटा सा एक मिलकर लोग इसमें बचाए, पैसे बचाएंगे, अपनी कंट्री के लिए कुछ न कुछ कर सकते। दूसरी बात, जिस बंदे को एड्स हो गया है, जिस बंदे को एड्स, आज की डेट में 100% ट्रीटमेंट उसका नहीं है। दिस मीन्स वो सेहत के हिसाब से कमजोर होगा, सेहत के हिसाब से अपने घर के लिए बर्डन, अपनी सोसाइटी के लिए बर्डन, अपनी स्टेट के लिए बर्डन, और ओवरऑल अपनी कंट्री के लिए बर्डन। जो पैसे वहां से बच जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वही पैसा सड़कों में यूज कर सकती है, अस्पताल बनाने में यूज कर सकती है, स्कूल बनाने में यूज कर सकती है। लिहाजा हम कुछ लोग अपने थोड़े मैसेज फैलाकर हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कर सकते हैं। और खासकर मैं आप लोगों को क्या पता कब कल मुलाकात होगी, आगे नहीं होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा अपने में दिमाग में ये बातें रखो, आप हेल्थ वर्कर हो, जिस सेक्शन में भी काम करने के लिए जाओगे, अपनी सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद दूसरी की सेफ्टी। इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई बिजली की करंट से आप देखोगे को किसी को कहीं पर बेहोश हुआ है, बिजली की करंट लगी किसी को, वो हो गया बेहोश, आप इमीडिएट वर्कर उसको हेल्प करने के लिए जाते हो, क्या करोगे? पहले उठ खड़े हो जाओ,